بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے طالبان رجیم کی جانب سے کالا دم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ پاکستان نے افغان وفد پر واضح کر دیا کہ افغانستان کو ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات 9 گھنٹے جاری رہے۔ اجلاس میں پاکستان کے 4 رکنی وفد نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او یو بھی شریک تھے۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے کی۔ مذاکرات کا پہلا دور 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہوا تھا، جس میں وزیر دفاع خالد آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے۔ مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ معاملات درست کرو ورنہ کھلی جنگ کرو۔ پاکستان کے وزیر دفاع خالد آصف نے افغان طالبان رجیم کو صاف صاف بتا دیا۔ کہا، افغان طالبان ہمارے خلاف بھارتی پراکسی کے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوحہ میں جن افغانوں سے مذاکرات کیے وہ سب پاکستان میں جوان ہوئے۔ 40 سال جن کی مہمان نوازی کی، ان کی پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی افسوسناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ ایشیا کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ صدر ٹرمپ کی قطر آمد، قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا طیارہ ملائیشیا جاتے ہوئے قطر کے العدید ایئر بیس پر ری فیولنگ کے لیے اترا۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر بیس پر اپنے طیارے ایئر فورس 1 میں ہی امیر قطر اور قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، غزہ معاہدہ برقرار رہے گا، مشرق وسطیٰ میں امن حاصل کریں گے۔ قطر امریکہ کا عظیم اتحادی ہے، ضرورت پڑنے پر قطر غزہ کی پٹی میں امن فوج بھیجے گا۔ پیوٹن سے اس وقت تک ملاقات نہیں کریں گے جب تک یقین نہ ہو کہ وہ امن معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دیرینہ اور دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی بالخصوص مسلم امہ کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر کا عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نمبرز پورے ہیں، پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا اعلان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پی پی رہنماؤں کی صدر آصف زرداری کی زیر صدارت اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان پارٹی قیادت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، سردار یعقوب، چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پی پی کو حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار۔ اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 17 اور نون لیگ کے ارکان کی تعداد 9 ہے۔ مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہونے پر پی پی کے پاس مجموعی تعداد 26 ہو جائے گی۔ نون لیگ کی حمایت نہ ملنے پر فارورڈ بلاک کی اہمیت بڑھ جائے گی اور فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اہم پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے حکمت عملی پر مشاورت تیز کر دی۔ افسوس، بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، 350 ارب روپے سے چمن سے کراچی شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایک بات شرط اول ہے، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن اور ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے، سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ Wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountain, and unfortunately what has happened in the last few years is something a matter of self introspection. جو اس وقت روڈ جو ہے کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ ایک بات شرط اول ہے، ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا، آپ سب کی کاوشوں سے۔
سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ کر دی گئی۔ 3 بھارتی سپانسرڈ خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا کہ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امن کے لیے ریاست کا ساتھ دیں گے، سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع خیبر میں جرگے سے خطاب، کہا ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وفاق ہمارے 550 ارب فوری دے، بھیک میں ملی پرانی گاڑیاں نہیں چاہیے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے شعر بھی پڑھا۔ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی تھے، پاکستانی ہے، پاکستانی رہیں گے۔ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع، ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، صوبائی حکومت، پارلیمنٹرین شامل ہوں گے۔ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس قید سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوش ہے کندم کو جلا دو۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا پر اگلے مورچوں کا دورہ، پاک بحریہ کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ سر کریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے دورے کے دوران پاک میرینز میں جدید 2400 TD ہوور کرافٹ کی بھی شمولیت کی گئی۔ ان 3 جدید ترین ہوور کرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت میں اہم اضافہ ہوا ہے۔ نئے ہوور کرافٹ مختلف سطحوں پر بیک وقت کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایتی جہاز اور کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی، وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے، اور زمین اور سمندر پر بیک وقت آپریشن کی یہ صلاحیت پاک میرینز کو واضح برتری فراہم کرتی ہے۔ نئے ہوور کرافٹ کی شمولیت پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل کی استعداد کار مضبوط بنائے گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس موقع پر کہا کہ نئی پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کے جدید ویژن کی عکاسی ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں اور ساحلی پٹی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کریکس ایریا کے دفاع کو پاک بحریہ کی اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن اور میری ٹائم سیکیورٹی قومی خود مختاری کا ستون ہے۔ پاک بحریہ علاقائی سلامتی میں اہم سٹیک ہولڈر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سر کریک سے جوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے واضح کیا کہ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ بلیٹن میں بات وزیر اعلیٰ مریم نواز کی، جنہوں نے ایئر پنجاب پروجیکٹ جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں۔ اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا، PIA کے CEO عامر حیات، مانچسٹر ایئرپورٹ کے MD کرس ووڈروف، قونصل جنرل امتیاز فیروز گوندل اور زاہد جتوئی، برطانوی ارکان پارلیمنٹ افضل خان، یاسمین قریشی اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے زاہد نور اس بارے میں ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی زاہد۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पहली परवाज़ जो है वो 5 साल के बाद आज दोबारा यहाँ पे पहुँची है। और PIA को 5 साल तक बैन का सामना रहा, उसके बाद आज जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ हुआ। PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्ते में 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी और अभी जो मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ जारी है उसके लिए लोग जो है वो चेक इन कर रहे हैं। पूरी फ़्लाइट बुकड है, जो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर फ़्लाइट आई है वो भी फुली बुकड है। पाकिस्तान काउंसलेट मैनचेस्टर की तरफ से यहाँ पे खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने आने वाले मुसाफिरों को वेलकम किया है और जाने वालों को खुदा हाफिज भी कर रहे हैं। यहाँ पे मुसाफिर जो है वो बड़े एक्साइटेड है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तासुरात है। और मुसरत मौका है। इसके अलावा इससे हमारी बायलैटरल ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और हमारा टूरिज्म के रिलेशंस बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि अभी हम divestment के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, let the result of divestment come forward and there is a plan, there is a tangible plan that will be shared inshallah. There's 600,000 people fly to Pakistan every year from Manchester Airport and they're now going to fly direct, and that's just a wonderful opportunity. As the Consul General mentioned, there's tourism, there's connecting people with their friends and family, there's business, all these different opportunities that come from these direct flights. 5 साल बाद PIA का रिवाइवल हो रहा है और मैं अपनी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने हम पे इतना करम और फजल किया, हमें PIA की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वर्क की हमारे गवर्नमेंट ने और ये बहाल किया PIA को। पहले जब भी हम जाते थे तो स्टॉप ओवर इट्स अ हेडेक, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी गोइंग डायरेक्ट। टिकट कितने की मिली है? Ticket 780. It's good price. Decent price. It's a price, decent So are you price. happy with it? Yeah, look, it's a great flight. The people are friendly. We love the staff. Good hospitality. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लोगों के जज्बात सुने, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बड़ा खुश हैं कि उन्हें एक बड़े अरसे के बाद, इंतज़ार करने के बाद बरतानिया से पाकिस्तान के लिए जो बराह रास्त परवाज़ें हैं वो मुयस्सर होंगी और वो PIA के लिए दुआगो हैं और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है वो कर रहे हैं। जी पर ख़त्म किया जाता है कि दूसरी शादी हुई, बीवी को महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में लिखा कि इजाज़त के बगैर दूसरी शादी तनसीख़ निकाह की जायज़ बुनियाद है। औरत की मर्ज़ी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, जहनी और जज्बाती अजियत पहुँचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिल बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके झिल्लर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। इलाके में किसी भी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पे नौजवान इरफान की हलाकत के केस में मुलव्वस 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO की मुद्दत में मुकदमा लापरवाही गफलत के बायस मौत की दफात के तहत दर्ज किया गया। अहल खाना ने इरफान की लाश तौराब गोश्त पर रखकर एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिदीन ने एहतजाज खत्म किया। इरफान को बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया था। में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान की हलाकत का केस। मुकदमे में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO SIU की मुतायत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में जुमे की शाम मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में 7 एहलकारों को नामजद किया गया था। मुकदमा लापरवाही गफलत के बाइस मौत की दिफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। पुलिस जराये ने ये भी बताया कि इरफान की लाश पोस्टमार्टम के वक्त 36 घंटे पुरानी थी। सोराब गोठ पर एहतजाज किया,
जिस से सोराब गोट से नागन चुरंगी जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। हमारा बंदा मर गया 302 में, FIR काट दी गई 319 की। बंदा हमारा मार दिया गया है FIR पुलिस की मुद्दत में। ये जुल्म है और इसके खिलाफ हम जब तक जिंदा हैं ऐसे लड़ेंगे, या तो हमें मारें या फिर इसकी 302 की FIR काटें। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। अहले खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। इरफान को 3 साथियों समेत बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया था। अगले रोज जुमेरात की शाम इरफान के चचा को पुलिस ने बुलाकर मौत से आगाह किया। इरफान के तीनों साथियों को पुलिस ने छोड़ दिया था। कराची की सड़कों को ट्रक ड्राइवर्स ने रेसिंग ट्रैक समझा हुआ है। शहरी ने सड़क पर तेज रफ्तारी से ट्रक दौड़ाने वाले ड्राइवर को पकड़ लिया। शहरी ने हसन स्क्वायर से ट्रक का मोटरसाइकिल पर पीछा किया और कुरंगी में जा पकड़ा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन स्क्वायर से हादसे के बाद फरार हुआ था। शहरी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने कई अफराद को टक्कर मारी। पुलिस का कहना है कि थाने में इंतजार किया गया लेकिन कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं पहुंचा। पुलिस ने गफलत बरतने वाले ट्रक ड्राइवर वाहिद हसन के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में लॉकअप कर दिया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ये रोक रहा नहीं है सर, इनका सामान इस तरह गिरता जा रहा है, इसको रोकना पड़ता है। हाफिजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में 6 साला बच्चे का मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम बच्चे की लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की वालिदा ने अपने करीबी रिश्तेदार पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है। बच्चे की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि इरफान नामी रिश्तेदार अली हसन को जबरदस्ती साथ ले गया था। बाद में मुझे कॉल करके बताया कि अली हसन की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल लाया हूँ। DSP पिंडी भटिया आरिफ महमूद ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। अरफान है, हाँ पता कि कोई नहीं, ना कोई दुश्मनी ना कुछ, अल्लाह जाने क्यों मार गया है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया पर अगले मोर्चों का दौरा। पाक बहरिया की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने जवानों से खिताब के दौरान कहा कि सर क्रीक से जवानी तक अपनी बहरी हुदूद का दिफा करना जानते हैं। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के दौरे के दौरान पाक मरीन्स में जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट की भी शमूलियत की गई। इन 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम इजाफा हुआ। नए होवरक्राफ्ट मुख्तलिफ सतहों पर बैक वक्त काम करने की सलाहियत रखते हैं। रिवायती जहाज़ और कश्तियाँ जिन इलाकों में नहीं जा सकती वहाँ होवरक्राफ्ट बासानी मुतहरक रहेंगे और ज़मीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की ये सलाहियत पाक मरीन्स को वाज़े बरतरी फराहम करती है। नए होवरक्राफ्ट की शमूलियत पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत और मौसर रद्द-ए-अमल की इस्तेदाद कार मजबूत बनाएगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मौके पर कहा कि नई प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया के जदीद विजन की अक्कासी है। पाक बहरिया समंदरी सरहदों और साहिली पट्टी के दिफा के लिए पुरज़्म है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी कौमी खुद मुख्तारी का सतून है। पाक बहरिया इलाकाई सलामती तमाम स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएं। इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इकदामात की भी हिदायत की। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। PIA के CEO आमिर हयात, मैनचेस्टर एयरपोर्ट के MD, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इम्तियाज़ फिरोज गोंदल, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जाहिद नूर से। बताइएगा जाहिद। इस वक्त मौजूद हूँ मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पहली परवाज 5 साल के बाद आज दोबारा यहाँ पे पहुंची है। अभी जो मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए परवाज जारी है उसके लिए लोग जो है वो चेक इन कर रहे हैं। पूरी फ्लाइट बुकड है। जो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर फ्लाइट आई है वो भी फुली बुकड है। पाकिस्तान काउंसलेट मैनचेस्टर की तरफ से यहाँ पे खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आने वाले मुसाफिरों को वेलकम किया है और जाने वालों को खुदा हाफिज भी कर रहे हैं।
पुरमसरत मौका है। इससे हमारी बायलैटरल ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और हमारा टूरिज्म के रिलेशंस बढ़ेंगे। कि अभी हम डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेट द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट कम फॉरवर्ड एंड देयर इज अ प्लान, देयर इज अ टेंजिबल प्लान दैट वुड बी शेयर्ड। 600,000 people fly to Pakistan every year from Manchester Airport, and they're now going to fly direct. And that's just a wonderful opportunity. 5 साल बाद PIA का रिवाइवल हो रहा है और मैं अपनी कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने हम पे इतना करम और फजल किया, हमें PIA की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले जब भी हम जाते थे तो स्टॉप ओवर, इट्स अ हेडेक, and now alhamdulillah we go in direct। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लोगों के जज्बात सुने, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बड़ा खुश हैं कि उन्हें एक बड़े अरसे के बाद बरतानिया से पाकिस्तान के लिए जो बराह रास्त परवाज़ें हैं वो मुयस्सर होंगी और वो PIA के लिए दुआगो हैं और उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है वो कर रहे हैं। जी, नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो वो महातीर मोहम्मद से बड़े लीडर और पाकिस्तान मलाइशिया से आगे होता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 40 साल भीख और चंदा मांगने वाले को मुल्क की कुंजियां दे दी गईं। उसने वही किया जो अनाड़ी ड्राइवर करता है, मुल्क की मईशत की गाड़ी का इंजर पिंजर हिला के रख दिया। एक दिन के चूजे पर 10 रुपए टैक्स किसी तरह ठीक नहीं। विफाकी वजीराना तनवीर हुसैन का पोल्ट्री एक्सपो से खिताब, कहा इतने टैक्सों के साथ निजी शोबे का आगे बढ़ना मुश्किल है। आइंदा बजट में तमाम शोबों को टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा। बात हो रही थी कि एक दिन के चूजे पे 10 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, किसी तरह से भी ठीक नहीं है। जब मुझे पता चला तो मैंने चेयरमैन FPR से बात की, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन मैंने कहा मीटिंग करें और इनका जो स्ट्रॉन्ग इनके आर्गूमेंट है। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, जितने भी ये टैक्सेस हैं आइंदा बजट में बात कर रहा हूँ, ये रैशनलाइज किए जाएंगे। मैं समझता हूँ इन टैक्सेस के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। जामिया कराची में नए तालीमी साल के लिए दाखिला टेस्ट लिए गए। 7,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी और दाखिला कमेटी के अरकान ने इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। तलबा ने टेस्ट के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अनवर खान की रिपोर्ट। कराची में तालीमी साल 2025-26 में दाखिले के उसूल के लिए उम्मीदवारों ने रुझान टेस्ट में शिरकत की। सहूलत के लिए सीनियर प्रोफेसर और इंतजामी अमला रहनुमाई के लिए इम्तिहानी सेंटर पर मौजूद रहा। टेस्ट बिल्कुल अच्छा हुआ हमारा और MCQs बहुत इजी थे। टीचर्स अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंतजामिया तो काफ़ी अच्छा था, गाइडर्स यहाँ खड़े हुए थे, वो हमें गाइड कर रहे। जो टीचर्स थे वो काफ़ी पोलाइट थे, रिलायबल थे, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी कहते हैं रुझान टेस्ट मेरिट की बुनियाद पर लिया जाता है। 7,500 एप्लीकेंट्स हैं और जो अवेलेबल सीट्स है वो 1,400 के करीब हैं। देयर आर 22 सेंटर्स। स्टूडेंट की फैसिलिटेशन को ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ ख़ास ख्याल किया गया जो पेरेंट्स उनके साथ आते हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए जाएं। तालिब इल्म को कंप्यूटर रीडेबल शीट के अलावा एक मखसूस पेंसिल फराहम की गई जिससे तालिब इल्म MCQs के मतलूबा जवाब को मार्क करते थे। स्टूडेंट्स को एक मशीन रीडेबल पेंसिल दी गई है, एक खास लेड की पेंसिल है जिससे वो अपना सवालनामा को पुर करेंगे और जब मशीन जो है वो उसको रीड कर पाएगी। इसके अलावा कोई और कलम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जामिया कराची कुलिया साइंस, आर्ट्स व सोशल साइंसेज समेत मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिला टेस्ट की बुनियाद पर दिए जाते हैं। दाखिला टेस्ट के नताइज टेस्ट के इनेकाद के कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। पर्चों की जांच पड़ताल कंप्यूटराइज तरीके से की जाती है। कैमरामैन दिशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। मुल्तान के कदीमी कस्बे मखदूम रशीद के कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने डेरे डाल दिए। कब्रिस्तान में मौजूद गंदे पानी के जौहर से कब्रें मस्मार होने लगी। मजीद जानते हैं जुल्फिकार अली गिल की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के कदीमी कस्बा मखदूम रशीद के कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने अपने डेरे डाल लिए हैं। कब्रिस्तान का 186 कनाल रकबा सुकड़कर बामुश्किल 40 कनाल भी नहीं बचा है। काबजीन ने कब्जा किए हुए अरसा दराज से इलाके मुअज्जिन दरख्वास्तें भी देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी गुजारी हैं दरख्वास्तें और मुल्तान इंतजामिया को भी दी गई हैं, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कब्रिस्तान के रकबे पर गंदे पानी का जौहर भी मौजूद है जिसकी वजह से आए रोज कब्रें इस गंदे पानी में बहकर खत्म हो रही हैं। जब बहुत ज्यादा बारिशें आती हैं यहाँ पे कब्रें बैठ जाती हैं और साथ जो गंदे पानी का जौहर है वहाँ पे अक्सर बाज़ औक़ात कफन भी बह रहे होते हैं। तो ये कब्रिस्तान जो है ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि ये सारा जोड़ बना हुआ है और लोगों ने कब्जा करके इसके ऊपर मकान बनाए हुए हैं। मखदूम रशीद के शहरियों की जानब से ज़रील इंतजामिया मुल्तान को कई बार दरखास्तें भी दी गईं, मगर मौसर कार्रवाई न होने की वजह से लोगों ने कब्रिस्तान के रकबे पर अपनी तामीरात कर रखी हैं। यहाँ के शहरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब और कमिश्नर मुल्तान से ये मुतालबा किया है
کہ मखदूम रशीद के इस कदीमी कब्रिस्तान का रकबा कब्जा माफी से बागुजार करवाया जाए। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ जुल्फकार अली गिल, ARY न्यूज़, मखदूम रशीद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खानेवाल में सफाई का अमल जारी, जिला भर की गलियां और सड़कें चमक उठी। साजिद खान की रिपोर्ट। कैमरा जब खानेवाल की गलियों और सड़कों पर पहुंचा तो हर तरफ सफाई, चमक और ताजगी का एहसास नुमाया था। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। सैनिटरी वर्कर सुबह सवेरे गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और जदीद मशीनरी के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक मुंतकिल कर देते हैं। शहरियों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को इनकलाबी प्रोग्राम करार दिया। मरीम नवाज साहबा ने जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम निकाला है, माशाल्लाह बहुत कमाल का प्रोग्राम है। इनकी जो टीम है सुथरा पंजाब की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है और हमें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा माहौल मिलता है और गलियां और रोड जो है जगमगा रहे हैं। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सुथरा पंजाब का, हम सुबह घर से निकलते हैं तो पहले तो जगह जगह पे कूड़ा पड़ा होता था, सफाई नहीं होती थी। हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब निकाला है। रोड इतने ज़बरदस्त महसूस होते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल होता है, खुशगवार, शहरी भी खुश नज़र आते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि जिला भर से रोजाना 1250 टन से ज्यादा कचरा उठाया जाता है। CM पंजाब का इनिशिएटिव सुथरा पंजाब खानेवाल के अंदर ज़ोरों शोर से जारी है। इसके अंदर हमारे पास डेली रूटीन के अंदर 4500 से ज़ायद वर्कर, 850 से ज़्यादा मशीनरी, 550 से ज़्यादा कंटेनर और 850 से ज़्यादा इक्विपमेंट जो हैं वो शामिल होते हैं और डेली हम शहर के अंदर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 1250 टन से ज़ायद कूड़ा उठाते हैं और उसको लैंडफिल साइट पे प्रॉपर एक तरीके से तल्फ करते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल को वाकई साफ और खूबसूरत बना दिया है। अगर यही तसलसल रहा तो पंजाब के दीगर शहर भी सफाई के नए मेयार कायम करेंगे। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार्गो शिप मुतारिफ करवा दिया। बिजली से चलने वाला ग्रीन शिप लिथियम बैटरी सिस्टम से लैस है जो एक बार चार्ज होने से हजारों मील का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये जहाज 10,000 टन तक का सामान ले जा सकता है। ये मंसूबा कार्बन के खराज में कमी और बहरी तिजारत को नई समत देने की जानिब एक बड़ा कदम है। कराची से आपको खबर देंगे जहां UC चेयरमैन शांति नगर के कत्ल में मुलविस बाप बेटा पेशावर से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मार्च में UC चेयरमैन फाइक यूसुफजई को कत्ल किया था। इसी पर मजीद जानेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सलमान। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में कार्रवाई की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो बाप बेटा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने डालमिया के इलाके में 2 कत्ल किए थे। पहला कत्ल का वाकया UC चेयरमैन का था और इस केस का जो गवाह था उसको भी इन्होंने कुछ अरसे बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। फाइक यूसुफजई नाम था UC चेयरमैन का और इसके साथ जो दूसरा कत्ल हुआ था इसी केस से रिलेटेड इस्माइल, ये वाकया भी डालमिया शांति नगर में पेश आया था। पुलिस कहती है जाती दुश्मनी पर दोनों अफराद बाप बेटे कत्ल करने के बाद पेशावर फरार हो गए थे, जिनको तफ्तीशी पुलिस ने गिरफ्तार करके अब कराची मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस कहती है कि गुलशन इकबाल के इलाके में एक और कत्ल हुआ था जिस वाकये में भी ये लोग मुलविस है, उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत में ऑस्ट्रेलिया की खातून क्रिकेटर्स को तंग करने का वाकया। इंदौर में क्रिकेटर्स को तंग करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल से कैफे जाते हुए खातून क्रिकेटर्स को 2 बार नामुनासिब अंदाज में छुआ गया। भारत में गैर मुल्की खातीन खिलाड़ी भी महफूज नहीं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ हिरासगी का इंतहाई नाखुशगवार वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम धर लिया गया। आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई है। मुलजिम की शनाख्त 28 साल के अकील के नाम से हुई जो आजाद नगर का रिहायशी बताया जा रहा है। 3 क्रिकेटर्स को होटल से कैफे जाते सड़क पर 2 बार नामुनासिब अंदाज में छुआ गया। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी मैनेजर डैनी सिमंस ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। खिलाड़ियों के साथ कोई सिक्योरिटी अफसर मौजूद नहीं था। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान बदइंतजामी का ये पहला वाकया नहीं। ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम के खाने के वक्त लॉबी में चूहा घुसने से अफरा तफरी मची थी। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी भारतीय होटल के खाने से फूड पॉइजन का शिकार हुए थे। गुज़िश्ता माह वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गैर मुल्की कोच कुत्ते के काटने से भी जख्मी हुए थे। कराची के बर्न्स गार्डन में होने वाले हिजड़ा फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा सराओं का कहना था कि वो अपना हक चाहते हैं, उन्हें भी इस मौके का फर्ज समझा जाए। जान नवाब की रिपोर्ट।
ملک بھر سے آئے ہوئے خواجہ سراؤں نے فن، ثقافت اور موسیقی کے ذریعے اپنے وجود اور اپنے حق زندگی کو آواز دی۔ اسپیشل ہمارا دن ہے، اس دن ہم اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ہمارے اس ہجرہ فیسٹیول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ثقافت پیش کرنا، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل نہ ہو ہمارے ساتھ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ معاشرتی نفرت، تشدد اور امتیاز نے انہیں تباہ کیا ہے۔ مختلف کردار ہے، کوئی ڈانسر ہے، کوئی گلوکار ہے، ہم سب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ فیسٹیول ہے، ہر سال ایسی ہم لوگ کو خوشیاں بنائیں۔ فیسٹیول میں قانونی تحفظ، روزگار، تعلیم، صحت میں شامل کیے جانے کے مطالبات بھی سامنے آئے، جبکہ ناانصافی، جرائم کے خلاف مؤثر اقدامات پر بھی زور دیا گیا۔ میوزک، ڈانس اور بھنگڑے پہ خواجہ سرا اپنا دن منا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔